اب میں آخر میں حضرت مولانا افتخار احمد صاحب مفتاحی دامت برکاتہم شیخ الحدیث جامع مفتاح الامہ کو نہایتی ادب و احترام سے مدعو کر رہا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنے معاذ حسنہ سے ہم لوگوں کو مستفیض فرمائیں۔ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدر اجلاس، اسٹیج پر بیٹھی ہوئی گراں قدر شخصیات، معزز سامعین اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں، وقت بس 10 منٹ کا ہے۔ میں سب سے پہلے تو اس اجلاس کی منعقد کرنے والے جو ذمہ داران ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے جلسہ سیرت النبی کا انعقاد کیا ہے، اور جو پولیس کے لوگ ہیں، پولیس والے ہیں جو ہمارے اور آپ کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور آپ سبھی لوگ جو اپنا قیمتی وقت نکال کر اس مجلس میں شریک ہیں، آپ سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مختصر سی بات میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو بنایا، اور اس پوری کائنات کا دلہا انسان کو بنایا، اور انسانوں میں بھی ہمارے نبی سرتاج انبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سب سے اعلیٰ و اشرف بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ لولاک لما خلقت الافلاک، حدیث گرچہ سندن موضوع ہے لیکن یہ مضمون اپنی جگہ درست ہے کہ اگر ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ آسمان و زمین، سورج، چاند، ستاروں کو پیدا نہیں کرتا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے انسانوں میں سب سے اعلیٰ و اشرف ہیں۔ آپ امام الانبیاء ہیں، نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو انہی کی امت میں پیدا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمہ جہت نمونہ ہیں۔ سیرت کو دیکھا جائے، صورت کو دیکھا جائے، اقوال و کردار کو دیکھا جائے، ہر زاویے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ پوری دنیا انسانیت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجے گئے، اور یہ بات خود خالق کائنات اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ زندگی کا ہر گوشہ ہمارے اور آپ کے لیے اور انسانوں کے لیے نمونہ ہے۔ ہم کو اسے اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہیے، تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، فوز و فراخی ہم سرفراز ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی جو ہمہ جہت نمونہ بن کر دنیا میں آئے، اب نمونے کو دیکھنا ہو تو آپ دیکھیے کہ سارے انسانوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کی تحمل مزاجی کو دیکھا جائے، بردباری کو دیکھا جائے، اخلاق و کردار کو دیکھا جائے تو دیکھنے کے بعد ہم اور آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں۔ آپ سوچئے کہ سارے انسانوں کے سردار ہیں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، ایک دن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں، اتنے میں ایک بدو، ایک دیہاتی آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر دھاری دار چادر تھی۔ وہ دیہاتی بڑی تیزی کے ساتھ، شدت کے ساتھ اس چادر کو کھینچتا ہے، اور یوں کھینچتا ہے کہ آپ کی مبارک گردن پر داغ پڑ جاتی ہے، اس کے نشانات پڑ جاتے ہیں۔ ایک صحابی فوری دوڑے اس بدو کی طرف،
दूसरे साहबी दौड़े उस बद्दू की तरफ कि आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये नादिमा हरकत क्यों कर रहा है। लेकिन कुर्बान जाइए हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपने फौरी सहाबा को रोका, मना किया और कहा कि सुनो, इन्नमा कुंतुम बुइस्तुम मुयस्सरीन, तुम लोग जो दुनिया में भेजे गए हो, पैदा किए गए हो, तो लोगों के साथ नरमी करने के लिए, बुर्दबारी से पेश आने के लिए, वलम तुबसु मुअस्सरीन, तुमको दुनिया में इसलिए नहीं भेजा गया कि तुम लोगों के साथ सख्त मामला करो, सख्ती करो। उसके बाद अल्लाह के नबी ने उस आराबी से पूछा क्या मामला है। वो आराबी कहने लगा, देहाती कहने लगा कि आपने सबको तो माले गनीमत दिया और मुझे आपने माले गनीमत नहीं दिया। अल्लाह के नबी ने फौरन माले गनीमत में से कुछ हिस्सा उसको भी अता किया। अल्लाह के नबी के बुर्दबारी देखिए। और भी बहुत से वाक़यात हैं। उस देहाती का वाक़या तो बहुत मशहूर है, जो मस्जिद में आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात किया, वापस जाने लगा तो मस्जिद के एक गोशे में खड़े होकर पेशाब करने लगा। सहाबा उससे कहते हैं रुको रुको, ठहरो, सख्ती के साथ मना करना चाहते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को मना किया कि नहीं, उसको पेशाब कर लेने दो। वो देहाती पेशाब कर लेता है। एक सहाबी से आप कहते हैं पानी लेकर के आओ और पेशाब को धुल दो। और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आराबी को, देहाती को बुलाया और बुलाकर बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ ये बात अर्ज की कि देखो, मस्जिद ये नमाज के लिए बनाई गई है, अल्लाह के जिक्र के लिए बनाई गई, मस्जिद ये पेशाब पाखाने के लिए नहीं बनाई गई। तो इससे एक पैगाम दुनिया को हमें देना है कि हम मुसलमान पूरी दुनिया में सारे इंसानों के साथ किस लिए पैदा बनाए गए और भेजे गए, ताकि इंसानों के साथ नरमी का बर्ताव हम करें, लोगों के साथ जुल्म न करें। आकाए नामदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्राहिमून यरहमुहुर रहमान, रहम करने वालों पर अल्लाह भी रहम करता है। इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, जमीन में रहने वाले लोगों के साथ तुम रहम करो तो आसमान वाला तुम्हारे साथ भी रहम करेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में इसीलिए नबी बनाकर भेजे गए, इमामुल अंबिया बनाकर भेजे गए, ताकि पूरी दुनिया को, इंसानियत को आप सबक दें, नरमी बरतने का, लोगों के साथ अच्छा मामला सलूक करने का। जैसे आप सल्लम अखलाक व किरदार के एतबार से हम सब के लिए नमूना है, ऐसे इल्मी एतबार से भी आप नमूना हैं। दुनिया में जितने भी अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए, उन सारे नबियों में सबसे ज्यादा अगर किसी को इल्म दिया गया है तो हम सब के आका इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म दिया गया। आप सल्लम ने फरमाया है, तालिबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्ल मुस्लिम, हर मुसलमान पर इल्म का हासिल करना फर्ज है। इसलिए मैं इस इजलास के तवस्सुस से आप हजरात से ये बात अर्ज करना चाहता हूँ कि सब कुछ आप कीजिए, अपनी जिंदगी को बेहतर अंदाज से गुजारने के लिए जो कुछ भी इक़दाम करते करिए, लेकिन ज़ेवरे इल्म से अपने को और अपने औलाद को आरास्ता कीजिए। इस बात का अज़्म कीजिए कि हमारा कोई भी बच्चा इल्म से महरूम नहीं होगा, बल्कि इल्म से आरास्ता और पैरास्ता होगा। अगर हमने अपने औलाद को, अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को इल्म के साथ आरास्ता और पैरास्ता किया तो हम खुद एक बेहतरीन और शानदार जिंदगी गुजारेंगे और हमारा मुल्क भी तरक्कियात की राह पर चलेगा। दुनिया में वो सारे मुल्क, वो सारे ममालिक जो आज बहुत ऊंची परवाज़ रखते हैं और बुलंदियों पर फायद हैं, उनके बुलंदियों पर फायद होने की बुनियाद यही है कि वो शिक्षा, तालीम और इल्म के साथ अपने आप को मरबूत किए हुए हैं। इसलिए हम और आप भी अपने आप को इल्म के साथ, चाहे दीन का इल्म हो या असरी इल्म हो, हर इल्म के साथ अपने आप को मबूस करने की, अपने आप को मरबूत करने की कोशिश करें। चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आप हजरात से सिर्फ यही दरख्वास्त करते हुए आप हजरात से जुदा होता हूँ, रुखसत होता हूँ कि अल्लाह के नबी
नबी की जो सीरत है उसे हम अपनी जिंदगियों में ढालें, क्योंकि आपसे बेहतर कोई इंसान दुनिया में नहीं आया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदा दारी आंचे खूबा हमा दारन तू तन्हा दारी। सारे इंसानों को अल्लाह ताला ने जितनी खूबियां अता फरमाई हैं और जितने कमालात इंसानों के अंदर हैं उन सब का मजमुआ हम सब की आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद है। आपकी पैदाइश भी बेमिसाल है, आपकी मक्की जिंदगी की भी कोई मिसाल नहीं मिल सकती, आपकी मदनी जिंदगी की भी कोई मिसाल नहीं मिल सकती, आपकी हिजरत भी बेमिसाल है। गोया जिंदगी के एक एक गोशे को अगर हम देखें उसकी मिसाल हम दुनिया में तलाश करना चाहें तो उसकी मिसाल दुनिया में हम तलाश नहीं कर सकते। तो ये तो अल्लाह का बेपनाह फضل है कि उसने हमको उस नबी रहमत के साथ जोड़ा है, वाबस्ता किया है और उस नबी की उम्मत में पैदा फरमाया है जिसके मिस्ल कोई नबी दुनिया में नहीं आया। इसलिए जैसे उस नबी ने लोगों के साथ रहम करम का बर्ताव किया, नरमी का मामला किया और लोगों को तालीम के साथ जोड़ा और खुद भी तालीम के साथ आप मरबूत रहे। आपने कहा था कि मुझको मुअल्लिम बनाकर दुनिया में भेजा गया, इल्म वाला उस्ताद बनाकर दुनिया में भेजा गया। जो उस्ताद होता है वही दूसरों को इल्म देता है। तो हम और आप भी इन पैगामात को अपनी जिंदगियों में ढालने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के साथ रहम करम का मामला फरमाए और पूरी दुनिया में और खासकर हमारे मुल्क में अमन व अमान रहे और हमारा मुल्क तरक्कियात की मंजिलों को तय करता जाए। और हम सब इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हम सब की जिंदगियों में सीरत नबी को पैदा फरमाए और आप सल्लम की जो भी तालीमात हैं, जो आपके अहकामात हैं, उन पर चलने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।